तो गाइस कभी भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो वहां पे एनालिसिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडिया कि किस तरह से आपने अपने प्लान को बनाना है, किस तरह से आपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। एंड इन दिस कंटेक्स्ट आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि IRDAI 2024 में करंट अफेयर्स का पेपर किस तरह का आया था और क्या क्या चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2025। वे विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ मेनी मंथ्स द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स फ्रॉम व्हिच द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जहां से क्वेश्चन पूछे गए, और एंड में हम लोग एक ब्रीफ स्ट्रेटजी बनाएंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग द एग्जामिनेशन ऑफ 2025 here. But before I proceed, guys, the most important thing is we are talking about previous year question paper, and at this point of time you do not have the PYQs with you guys. I would request first of all to all of you guys that please do have the PYQs with you. तो आपके पास ये एरोटैप की बनाई हुई एक PYQ बुक है दोस्तों, ये आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लिंक फॉर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, which is absolutely free guys. The link is given in the description, so please download this previous year questions paper. We are providing you the PYQs of 2017, 2023 and 2024. So एक proper analysis आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So now guys, let's proceed with the video. With the agenda, if I talk about here, agenda is quite simple. We want to analyze the paper of 2024 with regards to the IRDAI current affairs that is in the phase 1 examination, because we know phase 2 is descriptive in nature. So phase 1 objective में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं current affairs के, तो क्या था उसको डिस्कस करेंगे। From which what are the things we are going to take away here? We are going to first of all try to analyze what should be your right time to start preparation for the current affairs. What could be the important sources which you must follow if you are preparing for the examination? What are the important areas where you have to focus on? And the important thing is at the end, I will talk about what should be the right orientation to study the relevant part of the current affairs. What are the things you have to keep in your mind when you are reading the current affairs, if I talk about the questions that have come across your examination. So let's first begin with the timeline, because timeline is very important. Whenever you start current affairs, the one common question everyone has in the mind is कि सर current affairs कितने months के पढ़े, ये doubt हमेशा रहता है। Now guys, if you look at the IIT examination of 2024, now the most important thing was that this examination was not a usual examination. ऐसा नहीं था कि यार मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सिर्फ 3 months में से आए हैं, 2 months में से आए हैं, 5 months में से हैं. It was a mixture of something. First of all, if there are 40 questions in your examination, be ready guys that out of these 40 questions, 9 to 10 questions can be regarding your finance static. Now when I talk about finance static, here I am including the static of your insurance also, which is your insurance static, like LIC, insurance, type of things of insurance that you should remember. So these 10 questions, which means the current affairs we can talk about, is basically lying around these 30 questions, where current affairs will be playing a prominent role here. So here you cannot ignore static part. And in this 30 questions, if you see guys, the examination was in the month of November. And if you see here, October, 7 questions. September, 11 questions. August, 4 questions. So in total, we have 22 questions out of 30 which were from last 3 months. तो इसका मतलब last 3 months इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे एक पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट, देखो अक्टूबर में 7 क्वेश्चन है सिर्फ, अगस्त में 4 है। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने मिडिल मंथ से क्वेश्चन पूछा, यानी कि सेकेंड मंथ से। अब क्या ये ट्रेंड है, आई कैन नॉट से, हो सकता है वन टाइम मतलब, बट याद रखना कि यहाँ पे आपको लास्ट 3 मंथ्स को ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इट शुड नॉट बी थिंग लाइक कि मैं लास्ट मंथ बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा फिर छोड़ देता हूं, सेकंड थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे नहीं, लास्ट 3 मंथ शुड बी हाई प्रायोरिटी। कमिंग टू दिस मंथ, दैट इज 4th and 5th month, just 5 questions, which means if you are preparing for this examination guys, your first part should be the last 3 months should always be your priority, उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ो। Now in this month, if you have very less time, what you guys can do is, आप यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप टाइम प्लान बनाओगे ना अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, लेट्स टेक एन एग्जांपल के पेपर हमारा नवंबर में होता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नवंबर में पेपर होता है इस टाइम की जगह, तो हम जुलाई जून में करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, बहुत कम टाइम, हार्डली 1 वीक या 2 वीक ही देंगे बस, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है, देन बिफोर जून देयर वर 4 क्वेश्चंस। तो हमेशा बोलते हैं कि यार जो डिजायरेबल टाइमलाइन है वो यहां पे भी वही काम करती है, 5 months
and the most important are 3 months. ठीक है, so that's the thing. And remember guys, here these 3 months are very very important because in IIDI your current affair is you require a sectional cutoff and it will play a very important role in your merit also. So do not take it lightly. These 3 months are very important. तो पहला पॉइंट तो ये मिला जो कि जनरली हर एग्जाम में एप्लीकेबल होता है. Now comes my next question here. ठीक है जी, एंड आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो गाइस, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एक ही टॉपिक से पूछे, डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट टाइमलाइन पे क्वेश्चन पूछे हैं. सो वी विल ऑल डिस्कस अबाउट दैट थिंग इन द लेटर हाफ आल्सो व्हेन आई विल शो यू क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड यू कैन सी द टाइमलाइन हियर आल्सो. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक हियर. Now guys, see one thing very important before I move further on. You are seeing one thing behind me, that is this topic of economic and social issues. आप बोलोगे सर हमारे IIT एग्जामिनेशन में ये से कहां पे आता है? ये ऐसे तो कोई टॉपिक ही नहीं है. जनरली यही टॉपिक होते हैं, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स. व्हाट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स? नाउ गाइस हियर अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग for different regulatory bodies examination along with IIDI. Okay, now if I'm saying like if you are preparing for IIDI and RBI or IIDI and NABARD, so in that thing yeah, you will always see economic and social issues is one of the topic of RBI examination. Now here what they have done is they have written economic and social issues impacting insurance. This is the topic which we have in the syllabus, but with regards to current affairs nothing has been specified here about economic and social issues. Now let me just give you guys कि आपको ये वाला पार्ट ऑफ करंट अफेयर जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाला उसको भी पढ़ना है. मैं बता रहा हूं सोशल इश्यूज में क्या क्या आएगा. देखो अगर कोई वुमेन ओरिएंटेड कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, जैसे पिछली बार शहर पे क्वेश्चन आया था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन आस्क्ड. तो वुमेन ओरिएंटेड कोई टॉपिक्स हैं तो ये आपको पढ़ने हैं. Then if I talk about, there are some regional organizations which are like BRICS, BIMSTEC, which are seen in news. Now you might consider them as summits and conferences also, but guys these are important topics. Regional corporations, so that is generally being covered under economic and social issues part of your RBI examination. तो यहां से क्या है कि अगर आप RBI के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाला पार्ट भी पढ़ना है, और अगर आप वैसे IIDI की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला पार्ट जो है इट काइंड ऑफ मर्ज अंडर जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट. सो आई होप गाइस दिस पॉइंट हैज गिवन यू क्लैरिटी बिकॉज़ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ये हमेशा क्वेश्चन माइंड में आएगा कि सर मैं RBI की तैयारी कर रहा हूं, क्या ESI वाले करंट फिर पढ़ूं या छोड़ दूं? फिर मैं बोलूंगा यार यहाँ पे तो GA आता है, तो GA का मतलब तो अवार्ड्स पर्सन से क्वेश्चन आते होंगे. सर ये तो नहीं हुआ. क्वेश्चन तो ब्रिक्स से भी पूछा गया है, क्वेश्चन तो उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पे पूछा है, क्वेश्चन उन्होंने इंडिया यूरोपियन यूनियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उस पर भी पूछा है. सो सर ये टॉपिक्स कहां से होंगे? ये जनरली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का टॉपिक है जो आर्मी में आते हैं. अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे भी ये सोशल इश्यूज क्लियरली डिफाइंड नहीं है. वहां पे it is not defined as syllabus. There is no clear definition of economic and social issues, but generally if you consider this term economic and social issues, तो यहाँ पे जेंडर इश्यूज की बात की जाती है, रीजनल कॉर्पोरेशन की बात की जाती है, सोशल जस्टिस की बात की जाती है. तो ये ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की. ठीक है, तो इसलिए हमने इस ब्रॉडर कैटेगरी को भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप RBI के साथ तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को मत छोड़ के जाना. ये पॉइंट समझ लो. बाकी फाइनेंस, करंट अफेयर्स, there were 4 questions that was asked. There were just 2 questions from schemes and 1 question from reports. And this is the major trend that we are seeing in the IIDI examination. If you are preparing for IIDI, यहाँ पे schemes और reports से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत घुमाए क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, तो that is the thing. So that is where we have got an understanding that how the topics are important. Now general awareness, when I talk about here, I talk about here general affairs like awards, persons in news, some defense news, some science and technology news, some government initiatives that are being covered here. So let's try to see the questions here. Question was, which mission will Group Captain Subhashu Shukla, India's astronaut designate and mission pilot, participate is the part of Indo-US collaboration? There was a question on FIDE chess championship. ठीक है, so this is what are the questions related to your general awareness component. Now talking about the thing that I was discussing about economic and social. अब देखो यार, आप में से काफी बच्चे इसको समिट एंड कॉन्फ्रेंस का पार्ट भी मानेंगे, जो कि बिल्कुल सही है. मैंने कह रहा नहीं है,
बट अगर आप ब्रॉडर एग्जामिनेशन की बात करो, बिकॉज जनरली व्हेन वी सी द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IITA एग्जामिनेशन गाइस, दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, लाइक दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर RBI आल्सो, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड आल्सो। अब सेबी में और इसमें डिफरेंस क्या है देखो समझना, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बिकॉज ये होता है अगर आप सेबी, PFRDA और IITA की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे सेबी PFRDA में कभी भी इस कंटेक्स्ट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हार्डली एक आधा आता है। यहां पे पिछली बार क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे ज्यादा है, ब्रिक्स पे क्वेश्चन आया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन पे है, शहर प्रोग्राम पे आया है, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स, हम दे हैव बीन आस्किंग दोस क्वेश्चंस। सो ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल इश्यूज पार्ट, इकोनॉमिक पार्ट से रिलेट करते हैं, तो इसलिए हम इसको इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का पार्ट मान के चलते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मैगजीन्स पढ़ते हो तो वहां पे हो सकता है जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी है, तो ये वाला पार्ट प्लीज क्लैरिटी रख लेना, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है इस पूरे एग्जामिनेशन में। बिकॉज यहां पे पिछली बार बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि सर जनरल अफेयर्स पढ़ के चले गए अवार्ड पर्सन, जो क्वेश्चन नहीं, उन्होंने ब्रिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने EFTA पे क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने शहर प्रोग्राम पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये कैसे हो गया सर? तो ये समझ लो यार इस चीज को यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा फाइनेंस स्टैटिक के ऊपर, तो सॉरी फाइनेंस करंट अफेयर्स के ऊपर, तो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब यहां पे बोलूंगा सेबी की न्यूज, PFRDA and IRDA. If they are asking questions, they might be asking question on these sort of things they can ask you. One thing very very important guys, there are many students who always think कि IRDA सर्कुलर्स में बहुत क्वेश्चन आएंगे। यार अगर कोई IRDA न्यूज पे जो हमने पेपर देखे हैं, जो हमारे पास पेपर है, जब मैं पेपर जो देख रहा हूं, IRDA सर्कुलर्स पे क्वेश्चन नहीं है, देयर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। और सिर्फ क्वेश्चंस क्या हैं, अगर IRDA कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है जो न्यूज में है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो IRDA सर्कुलर्स वेबसाइट के अंदर जाके पढ़ने का पॉइंट नहीं है। हाँ, फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो अलग बात है। अगर फेज 1 करंट अफेयर्स की बात हो तो यहां पे यह IRDA के सर्कुलर्स पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये ध्यान रखो। दैट इज वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स ऑलवेज टॉक अबाउट फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड दे स्टार्ट टॉकिंग यार IRDA का पेपर है तो IRDA पे ही सारे क्वेश्चन होंगे। नहीं, सेबी पे भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने UPI पे क्वेश्चन पूछ लिया है, and there was one question where IRDA has sort of given a ban something, ठीक है ना, तो उस पे क्वेश्चन आया था बस। बाकी स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन आए इंश्योरेंस के ऊपर, जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे, कि जब हम फाइनेंस स्टैटिक की बात करें, यहां पे अब आपका इंश्योरेंस सेक्टर पे कमांड होना अच्छी बात है। अगर आपका इंश्योरेंस सेक्टर पे कमांड नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे आपको मुश्किल होने वाली है, ठीक है। तो दैट्स द पार्ट ऑफ फाइनेंस स्टैटिक। एंड यस, इफ देयर वर 9 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस देयर वर 5 to 6 questions which were basically catering to insurance sector only. एक आधा क्वेश्चन उन्होंने RBI मॉनेटरी पॉलिसी पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो बट प्रोमिनेंटली यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का करंट, फिर आप इंश्योरेंस सेक्टर का स्टैटिक आपको पढ़ना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई होप योर करंट अफेयर यू आर गेटिंग अ क्लैरिटी। यही मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे। क्वेश्चन बहुत सीधे थे। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन NPS बात कर ले स्कीम, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नाउ सी सुरक्षा बीमा योजना, इट्स अगेन रिलेटेड टू इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम, इट्स अ फाइनेंस रिलेटेड स्कीम। नाउ हियर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT एग्जामिनेशन, वन थिंग आई कैन से what you should do is, with regards to IIT examination, your prime focus should always be on, that is, finance related schemes or insurance related schemes. Yes, that is something we can analyze, because अगर आप डिस्क्रिप्टिव में भी देखोगे तो वहां पे भी उन्होंने कहीं ना कहीं मत्स्य संपदा योजना पर क्वेश्चन पूछा, तो वो भी इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर है। सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना है। सो विच मीन्स हियर one thing that you should focus in finance plus insurance related schemes here. Okay ji, chalo, so government schemes. Then guys, this was a question which was somehow very difficult, and I would say guys, now with regards to this sort of question, what is one thing I could advise is, एक रिपोर्ट के क्वेश्चन के लिए आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप रिपोर्ट्स के अंदर घुस जाओ। आप स्ट्रेटेजी ये बनाना कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स न्यूज में है, कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकाले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकाले, आप उनको पढ़ो, बिकॉज यहाँ पे वेटेज बहुत ही कम है, ठीक है। तो आई होप अब यहां तक हमें क्लैरिटी मिल गया कि हमें कितने टाइम पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दैट इज ओरिएंटेशन आई एम डूइंग साइमल्टेनियसली, कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कौन से सोर्सेज से आप पढ़ना शुरू कीजिए, बिकॉज अगर हम पिछले बार की बात करें तो किस तरह से सोर्सेज पे क्वेश्चन आए हैं। वन सोर्स दैट वाज स्टैंड आउट
Here also was PIB, Press Information Bureau. There were many questions which was regarding your government related news. गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो यहां पे इफ आई से गाइस, if you are preparing on your own, PIB should be the one thing you should be considering. Okay, ji. And if you talk about other newspapers, so there was a mixed sort of blend. There were 3 questions from Business Standard. There were 3 questions from Hindu. There were 1 question from Economic Times. As current affairs is such a vast topic, so there was one question from some different sources also, like Indian Express से question आया हुआ है. Then there was a question that was directly picked from the website of NASA. आर्टेमिस अकॉर्ड पे क्वेश्चन आया था. आर्टेमिस अकॉर्ड पे न्यूज जो थी वो ये था कि इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया. क्वेश्चन पूछा उन्होंने ये नहीं कि इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया, उन्होंने पूछा इससे पहले आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाली कंट्री कौन सी थी. तो मतलब यू शुड नॉट बी जस्ट डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग सम बैकग्राउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन. आप कोई चीज पढ़ रहे हो उसके बैकग्राउंड में भी जाके आपको पढ़ना है. तो यहां पे देखिए, अगर हम सोर्सेस की बात करें तो मैं आपको यहां पे फिर एक चीज एडवाइस करूंगा दोस्तों. यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, टेक PIB एज योर प्राइम सोर्स, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉम्प्लीमेंट इट विद द कंपाइलेशन. बिकॉज अब मैं आपको बात करूं, क्या ये 7 क्वेश्चन अब आप 7 न्यूज़पेपर खोलोगे? नहीं, नॉट एडवाइजेबल. क्या मैं सिर्फ हिंदू पढ़ लूं तो हो जाएगा? नहीं. क्या मैं सिर्फ PIB पढ़ लूं तो हो जाएगा? अब यार वो 17 क्वेश्चन है. अब क्या सिर्फ आपको 17 क्वेश्चन करने हैं 40 में से? नहीं. Here you have to score good also, ना. So if you are doing this thing, guys, I would say take one source and complement it with a compilation. अब कंपाइलेशन आप वो पिक करना जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा आपके एग्जाम ओरिएंटेड, और इसके लिए फिर आपके PYQs बहुत मैटर करते हैं. Look at the PYQs and then think whether these sort of questions have been covered on those on these compilations or not. जैसे मैंने आपको बोला, क्या ब्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है, क्या इको मार्क के बारे में लिखा हुआ है, क्या शहर प्रोग्राम के बारे में लिख रहा है, बता रहा है उसके बारे में. So that is something you have to see in the compilations. If you talk about EduType, guys, EduType is also providing you a compilation, which is a sort of a comprehensive compilation where we are covering everything. ठीक है? It's a sort of an all-in-one current affairs file where we are covering your important files like your general affairs topics are covered, awards, persons and news. जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज वाला पार्ट बोला, तो जितना चीज यहाँ के लिए रेलिवेंट है वो हमने वहां पे आपको दी हुई है. जितने डेप्थ तक रेलिवेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है. फाइनेंस करंट अफेयर्स आर देयर, schemes are there, reports are there. Now there is one question that now also should be in the mind of a student. Sir, what about RBI notification? Should I read RBI notification for IID? Guys, as of now, when we've discussed this paper of 2024, there was not a single question that has been asked in IID from RBI notification. तो ये तो बिल्कुल ही लो प्रायोरिटी. और अगर आप मुझसे पूछोगे क्या मैं इसको छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ दो. नहीं समझ आ रही, छोड़ दो. तो ये आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल गया अब यहां तक आते आते कि मुझे कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए. अगर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस किस तरह से आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया ने यूनिकॉर्न, रैपिडो यूनिकॉर्न बना था, तो ये सितंबर की न्यूज है. ठीक है. फिर मैंने इको मार्क वाला क्वेश्चन बताया था. ठीक है जी, इको मार्क वाला क्वेश्चन है. शहर प्रोग्राम वाला क्वेश्चन था. क्लासिकल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था. ब्रिक्स वाले क्वेश्चन थे. ठीक है. तो ये ESI से आते हैं और ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है ये PIB से आया. PIB में ब्रिक्स के ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है, ये इंडियन मिनिस्टर ब्रिक्स की मीटिंग करने गए, इंडियन मिनिस्टर ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने गए हैं. तो वहां पे वो मीटिंग कहां पे इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेयर द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. ठीक है. वेयर दे हैव आस्क्ड यू कि कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया था, ऐसे कहीं ना क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू. तो वो चीज आपकी वहां से प्रिपेयर होगी. ठीक है. अब मैंने सुभाष शुक्ला वाला क्वेश्चन बोला था तो ये अगस्त से आया था. So last 3 months are playing very important role here, guys. That is one thing we have to see here. Now, when I say that, when we have looked at the paper here, now what does analysis say to us? क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहले timeline. Let's be quickly 5 months, which should be desirably we should be covering, and 3 months are the most important months. Second thing, what is the important analysis says? Yes, your prime target should always be with regards to general affairs plus financial oriented current affairs. But here remember, if you are reading the topic of some economic and social issues, for example, not economic and social issues के कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अब वो टॉपिक कैसे हैं? आपने वुमेन ओरिएंटेड कोई टॉपिक, वुमेन ओरिएंटेड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है. देयर इज सम इनिशिएटिव टुवर्ड्स द डिप्राइव्ड कम्युनिटी. Some regional organizations like BRICS, BIMSTEC are there.
India is signing a trade agreement with some specific countries. So these are the important topics which you should focus on. That's the second thing that this analysis say to us. Third thing is, if I talk about sources, obviously PIB is an important source, but advisable is complemented with the compilation. Okay, now if you ask me that what is the right time to start preparation, guys, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि 3 मंथ से आते हैं, बट हमें नहीं पता एग्जाम कब से होने वाला है, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा करना जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है. Now this is all this analysis say to us about IRD examination. But before I end, guys, this session, I just want to tell you that how EduTap is helping you. So guys, with respect to your examination, okay, you can go to the website of EduTap, that is www.edutap.in. Go here and click on the courses of IRDA grade A courses. Okay, so if we are saying to you guys, ठीक है जी, तो see the offers will be getting updated. ठीक है, ये जो ऑफर है आपको 15th अगस्त तक का दिख रहा है, बिकॉज मैंने वीडियो 15th अगस्त से पहले बनाया है. अगर आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, तो आपको जो भी प्रेजेंट ऑफर होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू हियर. ओके, नाउ व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, वी आर ऑफरिंग यू गाइस, ठीक है, with respect to current affairs, we are offering you the magazines, we are offering you if I talk about the MCQs for practice here, we are also offering you unit budget and economic survey, IRDA की annual report भी यहाँ पे पड़ी है. ठीक है, तो all the important things which is required for the examination have been provided here comprehensively. Plus the most important thing is, guys, we are offering you a mentorship here. The mentorship is very important. If I talk about IRDA courses, so we are going with your course which is relevant for both phase 1 and phase 2, that is gold course, जहां पे अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर होंगे. phase 1, phase 2 डिस्क्रिप्टिव विल बी प्रोवाइडेड यू है, आप थॉरोली कवर कर सकते हैं. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मेरा QRE और करंट अफेयर्स हो जाएगा, मुझे सिर्फ अपने phase 2 में डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ध्यान देना है, तो यू कैन ऑल्सो गो विद द IRDA ग्रेड A phase 2 course, silver course also, that is dedicatedly designed for phase 2. Now you can see here in both examination you will be getting the solved previous year question paper. Now if you are preparing the IIT examination with different examinations, so we are also offering you combo courses also. ठीक है, RBI plus IRDA, RBI IRDA NABARD, the courses are available to you. So जो मैं आपको ESI वाला पार्ट समझाता हूँ, मैंने इन बच्चों को भी समझाया है. अगर आप वैसे तैयारी करें तो मैंने आपको तो भी समझाया कि आप बोलोगे सर शहर प्रोग्राम पे क्वेश्चन क्यों आया, शहर प्रोग्राम तो जीए का पार्ट ही नहीं है यार. वो देखो एक ब्रॉडर टॉपिक है, वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक है, गवर्नमेंट कोई बड़ा इनिशिएटिव लेगा तो उस पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट हियर गाइस. ठीक है जी, एंड आई होप नाउ यू गॉट अ बेटर क्लैरिटी दैट हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर्स फॉर योर IIT एग्जामिनेशन. मैंने आपको हर टॉपिक बताने की कोशिश की है. अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मुझसे मिस हुआ है या आप कोई डाउट अभी भी आपके मन में है दोस्तों, तो आप जरूर मुझे अप्रोच करो. आई वुड बी रियली हैप्पी टू गाइड यू गाइस. सो फॉर दैट व्हाट यू गाइस कैन डू इज जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल at hello@edutap.co.in, or you guys can also book a call with us on the number 8146207241. So I wish you all the best guys. चलिए start preparing and again start preparing. अच्छी तरह समझो, बहुत अच्छा पढ़ो, एंड आई होप कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस बार IIDI में, वो मुझे ये तो पक्का बोलेंगे सर कि इस बार हम लोग ऑफिसर बनने वाले हैं. बिल्कुल, अगर आप रेडी हो ऑफिसर बनने के लिए तो डू लेट मी नो अबाउट दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन. चलो जी, बाय बाय गाइस.